નમસ્કાર બાળ મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? ગયા એપિસોડમાં આપણે વર્ગ અને વર્ગમૂળનો પરિચય, વર્ગ અને વર્ગમૂળના ગુણધર્મો અને કેટલીક રસપ્રદ પેટર્ન વિશે વાત કરી હતી. હવે આજના એપિસોડમાં આપણે આગળ વાત કરીએ. આપણે જોયું કે 1, 2, 3, 4, 5, 6 એટલે 10 સુધી સંખ્યાના જે વર્ગો છે એ સરળતાથી આપણે યાદ રાખી શકીએ એવા વર્ગો છે. એટલે એ સરળતાથી આપણે યાદ કરીને કહી શકીએ છીએ. પરંતુ તમને અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર જુઓ કે આપણે 23નો વર્ગ કરવો હોય તો આપણે કેટલાક સંખ્યાના વર્ગ કરવા માટેની કેટલીક ટેકનિક્સ છે એ જોવાના છીએ. અહીંયા આપણે સંખ્યાનો વર્ગ કરવા માટે એક સંખ્યા આપી છે 23. ચાલો આપણે એનો વર્ગ કરીએ. તમે જાણો છો કે 23 એટલે 20 + 3 થાય. તો હવે આપણે 23નો વર્ગ કરવો છે તો 20 + 3નો વર્ગ કરવો પડે. તો 20 + 3નો વર્ગ કરવા માટે આપણે આ 20 + 3ને એકવાર 20થી ગુણીશું અને એકવાર આપણે 3થી ગુણીશું. એટલે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા 20નો ગુણાકાર 20 + 3 સાથે કરશું અને 3નો ગુણાકાર 20 + 3 સાથે કરીશું. એટલે અહીંયા 20નો વર્ગ મળશે અને 20 × 3 + 3 × 20 અને 3નો વર્ગ, આનો સરવાળો આપણે કરીશું. એટલે અહીંયા 20નો વર્ગ 400 થશે. 20 × 3 અને 3 × 20 બંને વખત 60 + 60 મળશે અને 3નો વર્ગ આપણને 9 મળશે. એટલે આ બધાયનો આપણે સરવાળો કરશું. એટલે આપણે 400 + 60 એટલે 460 + 60 એટલે 520 અને એમાં 9 નાખશું એટલે 529. આપણે હવે જે સંખ્યાનો વર્ગ મેળવવાનો છે એ સંખ્યા છે 25નો વર્ગ. એટલે 625 થાય છે 25નો વર્ગ. 25નો વર્ગ 625 થાય છે. તો અહીંયા આપણે 25નો વર્ગ એટલે 2 × 3 અને એને ગુણ્યા 100 છેલ્લે 25 એવી રીતે આપણે 25નો વર્ગ કરીશું. અહીંયા છેલ્લે તમે આ દરેક સંખ્યા ઉદાહરણો તમે જોશો, ત્યારબાદ છેલ્લે એક પેટર્ન ફોલો થશે એ આપણે જોઈએ. પહેલાં આપણે ઉદાહરણો દરેક અહીંયા જોઈ લઈએ. 35નો વર્ગ છે 1225 થાય છે. એ 3 × 4 × 100 અને +25. હજી એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે કે 75નો વર્ગ. તો 75નો વર્ગ છે એ 5625 થાય છે. અહીંયા 7 × 8 એને ગુણ્યા 100 +25. હજી એક સંખ્યા આપણે લઈએ 125નો વર્ગ જે થાય છે 15625. અહીંયા 12 × 13 એને ગુણ્યા 100 અને +25. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને લાગતું હશે કે અહીંયા 2 × 3 કઈ રીતે કર્યા, 3 × 4, 7 × 8 અને 12 × 13 એ કઈ રીતે આવ્યા છે. તો એના માટેની એક ચોક્કસ ફોર્મ્યુલા છે કે જ્યારે સંખ્યાનો એકમનો અંક 5 છે એટલે કે તે સંખ્યા એ અહીંયા દશકનો અંક છે અને 5 છે એ દરેક વખતે 5 જ હશે. એટલા માટે એ છે એ અજ્ઞાત સંખ્યા છે. એ જુદી જુદી તમે જોયું કે એકમાં 2 હતી, એકમાં 3 હતી, એ જુદી જુદી હોઈ શકે, પણ એકમનો અંક હંમેશા 5 હશે. તો જ્યારે આપણે એનો વર્ગ કરીએ એટલે એ 5નો વર્ગ એટલે એ અહીંયા દશકનો અંક છે અને 5 છે એ એકમનો અંક છે. હવે આપણે એનું વિભાજન કરીએ તો એ છે એ દશકનો અંક હોવાથી એને આપણે અહીંયા 10 લખ્યું છે અને વત્તા એકમનો અંક તો હંમેશા 5 હશે જ તે, એનો વર્ગ આપણે કરીએ છીએ. એટલે 10 છે એમાં એનો આપણે એકવાર 10 + 5 સાથે ગુણાકાર કરશું અને 5નો 10 + 5 સાથે ગુણાકાર કરશું. એટલે 10 અને 10નો ગુણાકાર છે એ 100 વર્ગ થશે. 50 બે વાર થશે અને સામે 5 × 5 એટલે 25 થશે. એટલે 100 વર્ગ વત્તા 100 વત્તા 25 એટલે 100 કૌંસમાં તમે જોશો કે બંનેમાં આપણે કોમન કાઢીએ તો એ વત્તા 1 છે એ બંનેમાંથી કોમન નીકળે છે એટલે +25 એવી રીતે થશે. એટલે અને એ +1 ગુણ્યા 100 +25 થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સંખ્યાનો વર્ગ કરવા માટે આપણે પાયથોગોરિયન ત્રિપુટી વિશે વાત કરવાના છીએ. એક તમને એનિમેશન જોવા મળશે
અહીંયા એ વર્ગ વત્તા બી વર્ગ, અહીંયા આકૃતિમાં તમે જોઈ શકશો, અહીંયા એ બી સી છે એ બતાવેલા છે ત્રિકોણની 3 બાજુઓ, અને એને ત્રણેય બાજુ છે એને આપણે જુદા જુદા ચોરસ જુદા જુદા માપથી દર્શાવેલી છે. અહીંયા 3 ગુણ્યા 3 છે એટલે 3નો વર્ગ છે. આપણે જોઈએ એ છે અહીંયા 3નો વર્ગ છે, બી છે એ 4નો વર્ગ છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 3 ગુણ્યા 3ના જે 9 ચોરસ છે એને આપણે આગળની સાઈડ ત્યાં ગુલાબી કલરથી દર્શાવેલા છે, અને 4 ગુણ્યા 4 એટલે 4 વર્ગના ચોરસ છે એ લીલા કલરથી દર્શાવેલા છે. એટલે બંનેને ભેગા કરીએ તો એ 5નો વર્ગ એટલે કે 25 ચોરસ થશે. એ તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા 9 ચોરસ છે, 3નો વર્ગ એટલે 4નો વર્ગ એટલે એ 16 ચોરસ છે, અને એ બંને ભેગા થઈ અને 5નો વર્ગ એટલે 25 ચોરસ થાય છે. તો આ પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી આપણે જોઈ. હવે એ કઈ રીતે છે એ આપણે એનું વિવરણ મેળવીએ. 3નો વર્ગ વત્તા 4નો વર્ગ બરાબર 5નો વર્ગ, એટલે કે આ જે 3, 4 અને 5 છે એને પાયથાગોરિયન ટ્રેપલેટ્સ એટલે કે પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને પ્રશ્ન થશે કે શું આ 3, 4, 5 એ જ પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી છે, આ સિવાયની કોઈ પાયથાગોરિયન ત્રિપુટીઓ છે? તો એના પણ આપણે વધુ કેટલાક ઉદાહરણો જોઈએ. અહીંયા આપણે એનું એક સિમ્યુલેશન તમારી સામે મૂકેલું છે, a² વત્તા b² બરાબર c², અને એની બાજુમાં એની આકૃતિઓ આપેલી છે. આપણે વધુ એક ઉદાહરણ જોઈએ. તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો ત્રિકોણની એક બાજુની માપ છે એ 5 એકમ છે, બીજી બાજુનું માપ છે એ 12 એકમ છે, અને એ બંનેના સરવાળાથી મળતા ત્રીજી બાજુનું જે માપ છે એ 13 એકમ થશે. તમને અહીં નીચે જોઈ શકો છો કે આ 5નો વર્ગ વત્તા 12 વર્ગ એટલે 5નો વર્ગ 25 થાય છે, વત્તા 12નો વર્ગ 144 થાય છે. એ બંનેનો સરવાળો 169 થાય છે, અને એ 169 છે એ 13નો વર્ગ છે. આપણે વધુ એક ઉદાહરણ જોઈએ, પાયથાગોરિયન ત્રિપુટીનું વધુ એક ઉદાહરણ જોઈએ. 6નો વર્ગ 36, 8નો વર્ગ 64, અને 36 અને 64નો સરવાળો થશે 100, અને 100 છે એ 10નો વર્ગ છે, એટલે ત્રીજી બાજુ છે એનો માપ છે એ 10નો વર્ગ થશે. આ તો આપણે 3 ઉદાહરણોથી પાયથાગોરિયન ત્રિપુટીઓ જોઈ, પણ આ પાયથાગોરિયન ત્રિપુટીની ગણતરી કેવી રીતે થાય છે એ આપણે જોઈએ. હવે તમે સ્ક્રીન ઉપર જુઓ, જ્યારે m છે 1થી મોટો હોય ત્યારે આપણે એનું વ્યાપક સ્વરૂપ આવી રીતે થશે, 2mનો વર્ગ વત્તા m વર્ગ ઓછા 1નો વર્ગ બરાબર m વર્ગ વત્તા 1નો હોલ સ્ક્વેર, એટલે કે 2m m વર્ગ ઓછા 1 અને m વર્ગ વત્તા 1, આવી રીતે પાયથાગોરિયન ત્રિપુટીનું વ્યાપક સ્વરૂપ થશે. એનું આપણે એક ઉદાહરણ છે એ જોઈએ. એક આપણે સંખ્યા લઈ લઈએ. આપણે અત્યારે 8 છે એને આપણે m વર્ગ ઓછા 1 બરાબર 8 લીધા છે. હવે એનું આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો m વર્ગ બરાબર 8 વત્તા 1 એટલે 9 થશે, એટલે m બરાબર 9નું વર્ગમૂળ 3 થશે. 2m બરાબર 3 ગુણ્યા 2 એટલે 6 થશે, અને m વર્ગ વત્તા 1 એટલે mનો વર્ગ છે એ 3નો વર્ગ 9 થશે, વત્તા 1 બરાબર 10 થશે. તો આપણને 8, 6 અને 10 મળશે. પણ અહીંયા 8 કરતાં આપણને નાની સંખ્યા 6 મળી છે, એટલા માટે એ પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી કહેવાશે નહીં. આપણે એક વધુ ઉદાહરણ જોઈએ. એમાં આપણે 2m બરાબર 8 લઈએ છીએ. m બરાબર આપણે 8 લેશું એટલે m બરાબર 4 થશે, m વર્ગ ઓછા 1 બરાબર 16 ઓછા 1 એટલે કે 15 થશે, અને m વર્ગ વત્તા 1 બરાબર 16 વત્તા 1 બરાબર 17 થશે. એટલે આપણને જે ત્રિપુટી મળશે એ 8, 15 અને 17, જે પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી તરીકે આપણે જે 3-4 ઉદાહરણો જોયા એ પ્રમાણે પાયથાગોરિયન ત્રિપુટી તરીકે છે એવું આપણે કહી શકાશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાયથાગોરિયન ત્રિપુટીઓ છે એ વર્ગ કરવા માટેની એક રીત છે એ આપણે જોયું. હવે આપણે કેટલાક ઉદાહરણો તમારી પાસે સ્ક્રીનમાં આપેલા છે. જો
એક ચોરસનું ક્ષેત્રફળ છે 144 સેન્ટીમીટરનો વર્ગ હોય તો તે ચોરસની બાજુનું માપ કેટલું થાય? આપણે જાણીએ છીએ કે ચોરસનું ક્ષેત્રફળ બરાબર બાજુનો વર્ગ છે. જો આપણે ચોરસની બાજુની લંબાઈ એ ધારીએ તો 144 બરાબર એ વર્ગ. આમ એની કિંમત શોધવા માટે આપણે એવી સંખ્યા શોધવી પડે કે જેનો વર્ગ 144 મળે. આ એક પહેલું ઉદાહરણ હતું. બીજું એક ઉદાહરણ જોઈએ. બાજુમાં આપેલી આકૃતિ 6.1માં 8 સેમી બાજુવાળા ચોરસના વિકર્ણની લંબાઈ શું હશે એ આપણે શોધવાની છે. તો એના માટે આપણે પાયથાગોરસના પ્રમેયનો ઉપયોગ કર્યો અને AB² વત્તા BC² બરાબર AC², એટલે કે 8 અહીંયા એમનું માપ 8 વર્ગ આપેલું છે, એટલે 8 વર્ગ વત્તા 8 વર્ગ બરાબર AC વર્ગ, એટલે 64 વત્તા 64 બરાબર AC², અથવા તો 128 બરાબર AC². તો આપણને એસીની કિંમત તો જ મળે જો આપણે શોધી કાઢીએ કે 128 એ કઈ સંખ્યાનો વર્ગ છે. વધુ એક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ કે કાટકોણ ત્રિકોણમાં કર્ણ અને કોઈ એક બાજુની લંબાઈ અનુક્રમે 5 સેન્ટીમીટર અને 3 સેન્ટીમીટર છે, જે આકૃતિમાં બાજુમાં બતાવેલી છે, અને ત્રીજી બાજુની લંબાઈ આપેલી નથી. એ આપણે ત્રીજી બાજુની લંબાઈ શોધવાની છે. તો આપણે ધારી લઈએ કે ભાઈ ધારો કે ત્રીજી બાજુની લંબાઈ 1 સેન્ટીમીટર છે, તો પાયથાગોરસના પ્રમેય પ્રમાણે 5નો વર્ગ બરાબર xનો વર્ગ વત્તા 3નો વર્ગ થાય. એટલે 5નો વર્ગ 25 વત્તા x વર્ગ વત્તા 9, એટલે 25માંથી 9 જાય એટલે x વર્ગ, એટલે 16 બરાબર x વર્ગ. તો આપણને xની કિંમત માટે 16 કઈ સંખ્યાનો વર્ગ છે તેની જાણકારી જરૂરી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ઉપરના 3 જે ઉદાહરણો જોયા એ ઉદાહરણોમાંથી આપણને એક વસ્તુ આમાં આપણે તારવી શકીએ કે દરેક વખતે આપણે જે સંખ્યાઓની કિંમતની શોધવાની જરૂર પડી અને એ સંખ્યા જાણવાની જરૂર પડી, તો એ દરેક વખતે આપણે વર્ગમૂળ શોધવું પડે એમ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના એપિસોડમાં આપણે વર્ગ શોધવા માટેની કેટલીક રીતો જોઈ, પાયથાગોરિયન ત્રિપુટીઓની વાત કરી. આવતા એપિસોડમાં આપણે વર્ગમૂળ શોધવાની વધુ રીત છે એ શીખીશું. આવજો. नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हमने इकाई सोच अपनी अपनी के पहले एपिसोड में 2 चित्रों को देखकर उनका वर्णन किस प्रकार से होता है और हमें अपने विचारों की प्रस्तुति किस प्रकार से करनी चाहिए उसके बारे में कुछ जाना था, यहाँ पर चर्चा की थी. आज हम इसी इकाई में हमें वाद विवाद के लिए एक ऐसा प्रश्न दिया गया है जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं, और आज हम जिस प्रकार से मिले हैं ये भी उसकी ही फलश्रुति है. तो प्रश्न हमारे लिए ये है, विज्ञान हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है? और अपेक्षा ये है कि छात्र 2 यूथों में विभाजित होकर अपने साथियों के साथ, यानी कि एक दल वरदान के बारे में अपने विचारों की प्रस्तुति करेगा, लेकिन विचार की प्रस्तुति किस प्रकार से होगी? तो तर्क संगत होगी. तो आइए जरा देखते हैं कि आप क्या मानते हैं. आप विज्ञान को वरदान मानते हैं या अभिशाप मानते हैं? और अगर आप विज्ञान को वरदान मानते हैं तो क्यों मानते हैं, और अगर अभिशाप मानते हैं तो क्यों मानते हैं? उसके उत्तर आपको देने हैं. लेकिन ये उत्तर देने से पहले विज्ञान के जो आविष्कार हैं उसके बारे में हम यहाँ पर कुछ चित्र भी देखने वाले हैं, और विज्ञान ने हमें कौन कौन से आविष्कार दिए हैं उसकी जानकारी भी प्राप्त करेंगे. वैसे तो आप एक कविता पढ़ चुके हैं, आपको अगर याद है तो बताइए जरा. याद है ना? हाँ, जय विज्ञान की, और उसमें विज्ञान के सारे आविष्कारों की बात हो गई है. लेकिन उससे थोड़ा हटकर कुछ और भी आविष्कार विज्ञान ने हमें दिए हैं. उस कविता में आपने जिन आविष्कारों के बारे में सीखा है, समझा है, उसको जोड़कर, और आज यहाँ पर मैं और कुछ आविष्कारों की बात करने वाला हूँ, उसको जोड़कर आपको अपने विचारों की प्रस्तुति करनी है. और आपके जो भी विचार हैं विज्ञान के पक्ष में है, यानी कि आप वरदान मानते हैं तो भी या आप अभिशाप मानते हैं तो भी, सारे विचारों को अपनी कॉपी में दोनों तरह से लिखने हैं. यानी कि जितना हो सके उतना ज़्यादा आपका अभिव्यक्ति कौशल विकसित हो, उसके बारे में आपको खुद को भी प्रयत्न करने हैं. तो शुरुआत करते हैं. इस प्रश्न की चर्चा हमें कैसे करनी है
और कौन सी बातों को, कौन से आविष्कारों को ध्यान में रखना है। तो जरा देखिए। चलो, प्रश्न आपके लिए यह है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय पर आपके विचार। अब मैंने ये बात आपको अभी बताई, विज्ञान ने कई सारे आविष्कार किए हैं और आज हम उसके कारण अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं। आप भी अगर शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो विज्ञान की कई सारी खोजों का लाभ अभी आप ले रहे हैं, यानी कि इन खोजों ने हमारे जीवन को बिल्कुल सरल और सहज बना दिया है। लेकिन उन खोजों के कारण कुछ ऐसी भी समस्याएं खड़ी हुई है जो हमें ये मानने के लिए प्रेरित करती है कि विज्ञान हमारे लिए अभिशाप भी हो सकता है। तो आइए मैं अब आपको कुछ चित्र यहाँ पर दिखाता हूँ और ये कौन सी खोज है उसके बारे में बताता हूँ। लेकिन सोचना आपको है कि ये जो आविष्कार है यह हमारे लिए वरदान है या अभिशाप है। तो जरा देखते हैं पहला ये चित्र। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? शहर में हमें कारखाने देखने को मिलते हैं और कारखानों में जब कुछ नया बनता है उनसे इसी प्रकार का धुआं भी बाहर निकलता है। और ये धुआं क्या करता है, हमें क्या देता है, यह भी हमें समझना भी है, जानना है। ज्ञान की खोजों ने कई सारे ऐसे कारखाने, फैक्ट्रियाँ हमें दी है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने हमें क्या दिया? तो आप यहाँ पर देख रहे, प्रदूषण दिया। अब आपको सोचना है, विज्ञान ने कारखाने दिए और कारखानों ने कई सारी सुविधाएं दी, सुख दिए, लेकिन साथ ही साथ हमें क्या दिया है? प्रदूषण दिया है। तो अब आप विज्ञान को क्या कहेंगे, ये आपको सोचना है। दूसरा चित्र देखते हैं। इस चित्र से तो आप भली भांति परिचित है, कभी कभार आपको भी इनके पास जाना पड़ा होगा। तो यह है डॉक्टरी सुविधा और ये विज्ञान की ही देन है। और आज तो आपके गांव में, शहर में, हर जगह हमें डॉक्टर की सुविधा मिल रही है, क्योंकि हम जब भी बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ डॉक्टरी सुविधा से भी पर्यावरण के साथ कुछ और बातें हुई है, ये आपको सोचना है। और आज तो कई सारे शरीर के ऐसे अवयव हैं जिनको भी डॉक्टरी सुविधा के जरिए हम बदल सकते हैं और उसको अच्छी तरह से उपयोग में ले सकते हैं। तो ये आपको सोचना है। आप देख रहे हैं और आपको इसको देखकर तो बहुत अच्छा लगता होगा कि मैं भी कभी कभार इसमें बैठूंगा, है ना। तो ये यातायात के साधन है। मैंने यहाँ पर एक ही चित्र रखा, लेकिन यातायात के तो कई सारे साधन हैं, जैसे कि स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, साइकिल है, बस है, कार है, रेलवे है ना, और ये विमान है। तो इतना भारी, इतना बड़ा विमान किस प्रकार से आकाश में जाता होगा, ये सोचते हैं तो पता चलता है कि भाई ये तो कैसे होता होगा। लेकिन ये किसने कर दिखाया है? वैज्ञानिकों ने, यानी कि ये विज्ञान का आविष्कार है। और ये आविष्कार हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कम से कम समय में पहुंचा देता है, जिसके लिए पहले कई सारे दिन लगते थे। अब कुछ घंटों में ही हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको विमान का चित्र दिख रहा है, लेकिन सारे यातायात के साधनों को जोड़कर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है, यानी कि यातायात के साधनों के बारे में आपको वरदान या अभिशाप, या आप जो भी आपका मत है उसकी प्रस्तुति आपको अपनी कॉपी में करनी है। आइए अगले विज्ञान के आविष्कार के बारे में देखते हैं। यह है अंतरिक्ष की खोज। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स नाम की इकाई आप पढ़ चुके हैं। और आज तो विज्ञान इतना आगे बढ़ गया है कि अंतरिक्ष में भी बार बार वैज्ञानिक जाते हैं और वहाँ रहकर कई सारी खोजें कर रहे हैं। और उसके अलावा अंतरिक्ष में कौन कौन से ग्रह हैं और अंतरिक्ष के साथ जुड़ी हुई, आज हम मोबाइल से बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ इसी प्रकार की खोजें हमें आज मददरूप हो रही है। और उसके कारण ही हम सरलता से कहीं पर भी रहकर मोबाइल से बातचीत कर सकते हैं। आप अभी जो कार्यक्रम देख रहे हैं, यानी कि आप मुझे देख रहे हैं, तो ये भी किसकी देन है? ये अंतरिक्ष के खोज की ही देन है। उसके कारण ही आप मुझे देख रहे हैं। तो आपको अब ये भी सोचना है कि ये खोज हमारे लिए क्या है। चलिए अगली खोज के बारे में देखते हैं। ज़रा सोचिए, ये क्या है? हाँ, ये है बिजली। अगर बिजली नहीं होती तो क्या होता, है ना, क्योंकि पहले तो बिजली नहीं थी। अगर बिजली नहीं होती तो आज हम किस प्रकार से जीते?
ना टीवी चलता, ना घर में लाइट चलती, ना पंखा चलता, है ना। कई सारी समस्या, बिजली अगर नहीं होती है तब भी हमें महसूस होती है। तो ये बिजली की खोज भी हमें किसने दी है? विज्ञान ने दी है। आइए विज्ञान के ऐसे ही और कई आविष्कार हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए ज़रा, यह है दूरभाष, टेलीफोन भी कह सकते हैं। लेकिन आज इस प्रकार का टेलीफोन हमें देखने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि आज तो सबके पास क्या है? मोबाइल है, यानी कि भ्रमणभाष है। जहाँ पर भी आपको जाना है आप खुद लेकर जा सकते हैं और कहीं पर भी रहकर आप बातचीत कर सकते हैं। और इस संदेश व्यवहार का काम कितना सरल हो गया। और ये विज्ञान की खोज है। तो आप तो बच्चे हैं और आपको मोबाइल में गेम खेलना पसंद होगा और आपके मम्मी पापा आपको डांटते होंगे। आइए अगला आविष्कार देखते हैं। यह है पिस्तौल, हम बंदूक भी कहते हैं। तो इस चित्र को देखकर ही आप आश्चर्यचकित हो गए होंगे, लेकिन साथ ही साथ इसका क्या उपयोग होता है ये भी आप जानते हैं। और उसका अगर सही जगह पर, सही वक्त पर उपयोग नहीं होता है, यानी कि सही तरीके से अगर इसका उपयोग नहीं किया जाता है तो ये हमारे लिए नुकसानदेह भी है ना। और ऐसे कई सारे किस्से हैं कि पिस्तौल का गलत वक्त पर गलत तरीके से उपयोग हुआ और उससे कई सारे नुकसान भी हमें भुगतने पड़ते हैं। आइए अगला विज्ञान का आविष्कार देखते हैं। इस चित्र को देखकर आपको जरा सोचना है कि भाई इस चित्र में क्या है। हम पृथ्वी के बारे में पढ़ चुके हैं, उसके 2 ध्रुव है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, और वहाँ बड़ी बड़ी हिमशिलाएँ हैं। लेकिन अब ये प्रश्न हम सबको सता रहा कि भाई गर्मी और प्रदूषण फैलने के कारण क्या होने की शुरुआत हो गई है? ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ये जो बर्फ़ की बड़ी बड़ी शिलाएँ हैं उनका पिघलना शुरू हो गया है। और ये पिघल कर पानी बनकर कहाँ आएगा? ये सारा पानी समुद्रों में आएगा और समुद्र का तल ऊंचा उठता जाएगा। तो ये भी हमारे लिए चिंताजनक स्थिति है। और ये स्थिति क्यों पैदा हुई? तो ये भी आपको सोचना है कि भाई विज्ञान की कई सारी खोजें ऐसी हैं जिनके कारण प्रदूषण भी पैदा हुआ और इसलिए आज ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का सामना हमें करना पड़ रहा है। अगला आविष्कार देखते हैं। ये क्या है? तो आपको लगेगा कि ये युद्ध का कुछ सामान है। ये परमाणु है या परमाणु से बना हुआ कुछ यंत्र है। और परमाणु शब्द आपने विज्ञान में पढ़ा है, लेकिन आज परमाणु युक्त साधन, यानी कि युद्ध के कई सारे ऐसे साधन हैं जो परमाणु से लैस हैं और ये विनाशकारी है। और आज की परिस्थिति में आप भी ये समाचार में भी सुन रहे होंगे, अगर अखबार पढ़ते हैं तो उसमें भी आप जानते होंगे कि चारों ओर यही स्थिति है कि कब युद्ध हो जाए। और सबको संदेह यह है परमाणु युद्ध नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो विनाश का कारक है। तो अब आपको सोचना है। आइए अगला आविष्कार देखते हैं। ये आविष्कार से तो आप सब भली भांति परिचित हैं, है ना, क्योंकि आप स्कूल में भी इसका उपयोग करते होंगे। तो ये है कंप्यूटर। और आज कंप्यूटर ने तो कई सारे काम बिल्कुल सरल कर दिए हैं, क्योंकि एक ही क्लिक में हमें जो भी जानकारी प्राप्त करनी है वह आप प्राप्त कर सकते हैं इंटरनेट के ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए। और हमारी कई सारी बातें इसमें संग्रहित भी हो सकती है। कई सारे फोटोग्राफ्स भी, कई सारे वीडियो भी आप इसमें संग्रहित कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसमें पढ़ भी सकते हैं, यानी कि इसका उपयोग करके आप शिक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है कंप्यूटर। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने विज्ञान की कुछ खोजें, कुछ आविष्कारों के बारे में जानने का प्रयत्न किया। ये तो कुछ आविष्कार हैं। विज्ञान ने तो हमें इससे भी कई सारे आविष्कार दिए हैं जिनका हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग भी कर रहे हैं। अब आपको इन सारे आविष्कारों के माध्यम से ये सोचना है कि विज्ञान को हम क्या कहें, अभिशाप कहें या वरदान कहें। और अगर मैं कहता हूँ कि विज्ञान वरदान है तो उसके कारण सहित उत्तर मुझे अपनी कॉपी में एक के बाद एक आविष्कार के साथ लिखने हैं। और अगर मैं कहता हूँ कि विज्ञान अभिशाप है तो उसके उत्तर भी मुझे अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो मैं मानता हूँ कि
इस विषय में आप अब खुलकर अपने साथियों के साथ चर्चा भी करेंगे और आपके जो विचार हैं ये सारे विचार अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे और अपने माता पिता को दिखाएंगे। आपको अब ऐसे ही कुछ और विषय के बारे में भी कहा जाए, जैसे कि एक और विषय है वृक्ष हमारे लिए क्या है, वरदान है या अभिशाप है। ऐसे कई सारे विषयों पर भी आप खुद अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज आपको यहाँ पर भी मज़ा आया होगा और अब आप खुद अपने विचारों की प्रस्तुति करना सीखेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी में ज़रूर लिखेंगे। धन्यवाद।